Good morning, sir, as well as good Good afternoon. morning. Good morning, sir. Morning, Good my dear morning, students. sir. Morning. My dear students, Good morning, sir. yeah, Good morning, sir. as Morning, I sir, as well as good afternoon. as well as good afternoon. Good afternoon. Thank you. चल आपका Marius. ही डायलॉग है. Yes. बेटे, Good afternoon, sir. noon. एक मिनट बचा है सर. Today we have to study first flight. सिलेबस बता दीजिए. जगह पर. Yes, Hello. sir. Syllabus. क्या Sir, बेटे? syllabus. सर आप बोले कि आप पहले सिलेबस Oh. लिखा. Syllabus. Oh, Yes, sir. Yes. voice once again, please. I'm very sorry because I couldn't prepare the syllabus of half early because I had attended the death ceremony of Binay चौबे सर. विनय चौबे सर के पिताजी जो है वो डेथ कर गए थे. बेटे मैं प्रिपेयर कर नहीं पाया था, तो अब किस समय मैं आपको बताऊंगा. अब तो ऑन मंडे आई विल टेल. अगर आप कहेंगे तो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन इट विल बी बेटर कि मैं आपको Yes, ओरली yes, sir. नहीं आई विल नॉट सेंड. ग्रुप में भेज दीजिए. ओरली सुनिएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा. तो स्टूडेंट्स मंडे को बता दीजिएगा. यस डेफिनेटली आई टेल यू. तो बेटे आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में कौन सा चैप्टर पढ़ें? सेलेक्ट वन चैप्टर. चलिए बेटे आप. हाँ, फोर्थ चैप्टर. क्या नाम है चैप्टर का? सर टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. फोर्थ चैप्टर. सर हाँ बोलो. फोर्थ चैप्टर. टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर. 100 dresses. हाँ, The 100 dresses. द 100 ड्रेसेस. नो वो तो सर, चैप्टर 5 है, सर. एक मिनट सर, मैं बता रही हूँ. From the diary of Anne Frank. सर मैं सिलेबस लिखी From हूँ. the diary of Anne Frank. अच्छा इसको पढ़ना है. ओके. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. फ्रॉम द यस सर, यही है चैप्टर. डायरी ऑफ एन फ्रैंक. एक मिनट सर. हाँ सर आप ये बोलो. थर्ड चैप्टर आप पढ़ाए हैं ना, तो उसका पोएम नहीं आएगा क्या? आएगा. सर थर्ड चैप्टर अभी आप नहीं पढ़ाए हैं. थर्ड चैप्टर. यस सर, थर्ड चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं. बस आप- सेकंड चैप्टर पढ़ाए हैं सर, नेल्सन मंडेला. तो बेटे आप ही लोग तो बोल रहे हो. सर थर्ड चैप्टर ही पढ़ाइए. अच्छा. सर वो हम नहीं बोले थे, वो Okay. stories of ओके. about flying. टू स्टोरीज अबाउट सर जो सेकंड चैप्टर के बाद जो पोएम है वो पढ़ाइए. टू टाइगर इन द जू. stories about flying. बेटे इट्स नॉट अ गुड क्लाइमेट टू रीड अ पोएम. पोएम को पढ़ने के लिए अभी अच्छा क्लाइमेट नहीं. तो आफ्टर थर्ड चैप्टर आई विल टीच यू ऑल द रिमेनिंग पोएम्स, अ टाइगर इन द जू एंड अदर पोएम्स. तो पोएम के लिए थोड़ा हम लोग इंतजार कर लें. रेगुलर 2 पोएम पढ़ा दूंगा. ओके सर. आज अभी हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. My dear sir, the very first I will tell you that the chapter has its 2 parts, part 1 and part 2. तो अभी हम part 1 की बात करेंगे. His first flight. अभी हम part 1 की बात करेंगे. और part 1 में part 1 का जो
शीर्षक है, हेडिंग है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट। यस, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो as I hope that you all are having your book first flight, and if you are having your book in your hand, then find out the page number 30, because on the page, as I think on 30 it is given two stories about flying. Bete, actually I have a help book. I have a help book because I have not a textbook. I haven't. That's why it's my compliment that I have, and I have to teach to take the help of his. Marius, let me study at the very first 1-2 paragraph. Then the young Shigul was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been offered to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea is stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. पहले इतना हम लोग देखते हैं। My dear students, let me tell you something about the title. We have to study here part 1 and part 2. And in part 1, the story related to first flight is given. And in second story, in second part, we have to study a story related to flying. My dears, it means by and large, we have to learn from first flight. Not, I'm not talking about this book. From first flight, मतलब प्रथम उड़ान से हम बातचीत करेंगे। ये प्रथम उड़ान क्या है और ये उड़ान क्या है, फ्लाइंग क्या है। वैसे तो नेचुरली हम लोग जानते हैं और कॉमनली इस बात को हम समझते हैं कि उड़ान क्या है, बट एक पक्षी उड़ता है, दैट इज उड़ान। एक फ्लाइट जब धरती छोड़ देती है, एक जहाज जब धरती छोड़ देती है, एक एरोप्लेन जब धरती छोड़ देती है, तो वो उड़ान है। उस प्रक्रिया को हम उड़ान कहते हैं। बट कैन अ मैन हैव आल्सो अ फ्लाइट? क्या एक आदमी भी उड़ान ले सकता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The question Yes, is sir. very difficult. The answer of this question is very difficult, or to answer of this question is very difficult. क्या आदमी भी उड़ान भर सकता है? Yes, why not? Actually, what the profit we will get from this chapter, my dear students? With this chapter, we will know about flying, means udan, means related to career. My dears, you have also dream. Everyone is having different type of dream. सभी लोगों के पास अलग अलग सपने हैं और उन सपनों तक पहुंच जाना ही उड़ान तो है, वही उड़ान है। तो यहाँ दो स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे उड़ान से रिलेटेड। जैसे पहले वाले पार्ट में हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, मतलब उसकी पहली उड़ान। तो बेटे लेट मी at the very first, let me mute you. So let us study the young Shigul. आपको शिगुल का मतलब तो पता ही होगा। शिगुल मतलब एक समुद्र में रहने वाला पक्षी है। लेट मी शीट।
A small bird living in sea, समुद्र में रहने वाली छोटी सी चिड़िया को शीगुल कहते हैं, बहुत छोटी सी होती है. The young seagull was alone on his laze. Laze मतलब where birds live, जहां ऐसे पक्षी जो है रहते हैं वो एक चट्टान के भीतर रहते हैं, तो उस चट्टान के ऊपर की बात है, उसी को लेज कहते हैं. उसी पर वह अकेले वह शीगुल जो है बैठा हुआ है. He was sitting on his laze, वो वहां पर बैठा हुआ है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. His two brothers, वो तो बैठा हुआ है, he was sitting there alone, but उसके दो भाई और उसकी बहन had already flown, flew, flown, मतलब उड़ गए थे, away the day before, मतलब उस दिन वह पहले ही उड़ गए थे. कहाँ उड़ गए थे? वह उड़ गए थे अपने दाने, अपने भोजन के इंतजाम में, टू सर्च आउट, टू लुक फॉर देयर फूड. बट सीगुल वॉज सीटिंग एलोन देयर. why he was sitting there? Because he was fearing, क्योंकि वो डर रहा था. किस बात से डर रहा था? उड़ने से. It was his feeling, he could feel that he could not fly. उसे ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उड़ूं और गिर जाऊं. तो he had been afraid to fly with them. उनके साथ, with his brothers and sister, he didn't like to fly. उनके साथ वो उड़ना नहीं चाहता था, because he was afraid, वो भयभीत था, वो डरा हुआ था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the laze and attempted to flap his wings, he became afraid. Means somehow when he had taken a little run forward, कुछ दूर तक जब वो चला, actually he was afraid to fly, and when his family members, his brothers and sisters, all have gone from there, he was alone there. In such situation, he was trying to move somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, मतलब उस लेज के अग्रभाग पर जैसे ही वह थोड़ा चल करके आया, and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही उसने अपने पंखों को फैलाया, once again he became feared. Once again he became afraid. एक बार फिर से वह डर गया. तो the great expanse of sea is stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea मतलब नीचे जो समुद्र का बड़ा फैलाव था. भाई आपको तो पता है, उस अपने लेज से, उस पत्थर पर से नीचे जो पानी की धारा बह रही है, और समुद्र का एरिया भी बहुत ही लंबा चौड़ा होता है. तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी इज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो नीचे उतना बड़ा फैलाव था, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, मतलब और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता जो था, मीलों नीचे, माइल्स डाउन, मीलों नीचे तक का रास्ता था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. इट वॉज हिज फीलिंग, वह देख करके, उस चौड़े समुद्र को देख करके, और वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर सकता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में ही कहीं गिर जाऊं. तो और उसे यह भी लग रहा था कि उसके पंख इतने सपोर्ट नहीं कर पाएंगे,
इतना मैं उड़ नहीं पाऊंगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the lace where he slept at night. इसलिए he became back to his lace and he entered under the lace. वह पत्थर के भीतर चला गया और उसमें जाकर के वो रात भर सो गया रात में। अब my dears, अब क्या हो रहा है? Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings. अब देखिए, even when each of his brothers and his little sister, उसकी छोटी बहन और उसके दोनों भाई, whose wings were far shorter than his own, हालांकि उन सबके जो पंख थे उसकी अपेक्षा छोटे ही थे, but ran to the brink, flapped their wings and flew away. उन लोगों का रोज का ये आदत, रोज की ये आदत थी, it was their habit कि वो ब्रिंक तक जो है दौड़ करके जाते थे, फिर अपने पंखों को फैला करके वहां से उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plug which appeared to him to desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lace unless he flew away. वही बच्चे से किसी बात को माँ पिताजी कहते हैं कि मान जाओ, जब वो नहीं मानता है तो एक भाई मार सकते नहीं तो एक दंडात्मक कार्यवाही उसके साथ होती है, इसे कुछ खाने को मत देना, इसे बात मत करना। ये आपके और हमारे घरों में, सबके घरों में होता है। No one will talk with him and don't give anything to eat. इसको खाने को कुछ मत देना, इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। इतने में तो बच्चे की हेकड़ी निकल जाती है और बेचारा उसका हाल एकदम खस्ता हो जाता है। मारियस, जब ये बात उसके पिताजी और माताजी को पता चला शिगुल के, तो दोनों बड़े ही गुस्साए। Both mother and father became angry and they decided not to give a little part of grain, कुछ भी देने के लिए, कोई भोजन देने के लिए मना किया उन लोगों ने, और बहुत ही तेजी से, श्रीली बहुत तेजी से, upbraiding him मतलब डांटे, और threatening to let him starve, और डांट करके और थ्रेटेन किए, they threatened him, दोनों लोगों ने धमकाया कि इसे भूखा रहने दो, जब तक ये उड़ेगा नहीं तब तक इसे कुछ खाने को मिलेगा नहीं। कहा गया, he was said, he was ordered to be safe where under the lace, जाओ तुम उसी में सेफ रहो, but you will be starved, तुम भूखे रहोगे, as long as you will not try to fly, जब तक तुम उड़ने का प्रयास नहीं करोगे, उड़ नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये दंड था उसके लिए, शिगुल के लिए। मारियस, अक्सर हमारे घरों में ऐसा देखा जाता है, माताजी पिताजी ये सख्ती रखते हैं बच्चों के लिए, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ऐसा लग रहा था कि उसने भी ये तय कर लिया था, अब खाने को नहीं देंगे कोई बात नहीं है, मरूंगा भी तो आपके सामने ही ना, अगर मैं मर जाऊंगा तो आपके सामने ही ना। इफ आई विल बी स्टार्व्ड, इफ आई विल फेस स्टार्वेशन, भूखमरी का शिकार अगर मैं हुआ तो बिफोर यू, एंड इफ आई विल डाई बिफोर यू, भाई जन्म आप लोगों ने दिया है, आपके सामने मर जाऊंगा, और क्या। तो बेटा बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं उड़ नहीं पाऊंगा, इतना अंदर से वो डरा हुआ था। दैट वॉज 24 hours एगो, 24 घंटे पहले। सिंस देन, ये 24 घंटे पहले कहा गया था,
उसके माता पिताजी के द्वारा। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और जब से उनके माता उस शिगुल के माता पिताजी ने उससे कहा था कि तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा जब तक तुम उड़ोगे नहीं, तब से उसके पास कोई आता भी नहीं था, कोई हालचाल लेने भी नहीं आता था। तो since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his quadrice. That was 20 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, भैया एक दिन की बात है, it was the happening of one day. All day long, पूरे दिन he had watched his parents, अपने माता पिताजी को वो पूरे दिन देखता रह गया, about with his brothers and sisters, because they were flying, his father and mother were flying with their other children, not with the shigul, but yes, they were teaching their children how to dive, how to skim, and so many things. वो देखता रहा, perfecting them in art of flight, उड़ने की कला में सक्षम बनाना उसके माता पिताजी बता रहे थे कि how to fly very fast, teaching them how to skim, पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर कैसे जो है आप ऐसे स्कीम करोगे, कैसे फिसलोगे, and how to skim the waves and how to dive for fish, और कैसे तुम गोता लगा करके पानी में से मछलियों को पकड़ोगे। हमारे बड़े भाइयों को और छोटी बहन को ये बताया जा रहा था, but I was sitting alone and I was fearing. मैं ये सब माता पिताजी को करते हुए देख रहा था। कौन बोल रहा है? शिगुल। He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it. अब बेटे और क्या वो देखता है? He had in fact seen, मतलब सचमुच में उसने देखा था, his brother, his older brother, अपने बड़े भैया को, अपने बड़े भाई को, catch his first herring. herring मतलब एक मछली का नाम, it is the name of a fish. हेरिंग मछली को पकड़ते हुए एंड डिवोर इट, और खाते हुए, डिवोर मतलब उसको निगलते हुए, खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर, while his parents circled around raising a proud cackle. अब देखो ना, कैकल मतलब होता है पक्षी की आवाज। उसने देखा कि उसके माता पिताजी एक दूसरी चट्टान पर बैठे हुए हैं। His father and mother were sitting on a rock, and on the second rock his brother was eating a fish, एक मछली खा रहा था। His father and mother, उसके माता पिताजी, his parents were crying, वो साउंड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो प्राउड फील कर रहे हो। It was seeming that they were feeling proud, that wow, क्या बात है, उसके बच्चे आगे बढ़ रहे थे। Marius, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his quadrice. पूरी प्रातः मतलब all the morning, पूरी प्रातः का all the morning का मतलब क्या है? सुबह में, जैसे सुबह भाई हमारे यहाँ एक उषा काल होता है, the time before rising the sun, सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहते हैं, उसको अंग्रेजी में डॉन कहते हैं। डॉन मीन्स द टाइम बिफोर राइजिंग, बिफोर सन राइजिंग। तब से भोर हमारे यहाँ रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजे भोर हो जाता है। मॉर्निंग जब
प्रकाश दिखने लगता है। जब अपने आसपास की वस्तुओं को हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि अब सुबह हो गई है और 9 बजे तक हम सुबह मानते हैं। उसके बाद अब हम दोपहरी की ओर बढ़ते हैं। तो पूरे दोपहरी, पूरे सुबह में, मतलब 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक क्या हुआ था कि किधर गया भाई, हाँ, तो all the morning the whole family had walked about on a big plateau। अब देखिए, प्लेटो का मतलब पठार होता है, level stretch on a mountain, पठारी भागों पर जो समुद्र तल से सटे ही होते हैं। पठारी भाग आपने एसएसटी में आपको पढ़ाया गया होगा, इन एसएसटी सब्जेक्ट यू हैड बीन टॉट। तो वहां पूरे सब लोग टहलते रहे पूरी सुबह भर। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वार्ड आइज। और सब लोग, टॉन्टिंग मींस सब लोग व्यंग कर रहे थे। दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट शिगुल। तो शिगुल के बारे में वो अच्छी बात नहीं कर रहे थे, उसके क्वार्ड आइज की वो लोग चर्चा कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे बहुत डरपोक है, डरपोक कहीं का। सब लोग व्यंग कर रहे थे कि भैया ये तो एक ही दिन ऐसा उड़ेगा कि समुद्र को ही लांघ जाएगा। इस तरीके के कुछ व्यंगात्मक स्टेटमेंट्स आ रहे थे उधर से। तो the sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. The sun was now ascending the sky. Now ascending the sky, ascending and descending order आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। You have been taught ascending order and descending order. Ascending order means उत्तरोत्तर, आगे की ओर, और descending order मतलब ऊपर से नीचे की ओर। The sun was now ascending the sky, मतलब वो अभी चढ़ रहा था, सूर्य चढ़ रहा था, मतलब मॉर्निंग से अब नून की ओर दिन बढ़ रहा था। Blazing on his legs that faced the south, मतलब और उसकी जो चट्टान थी उस पर वो बहुत तेज चमक रहा था, ब्लेज कर रहा था। कौन? सूर्य, जिसका मुख जो था वो दक्षिण की ओर था। दैट फेस द साउथ, इसका मुख जो था वो दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, बहुत गर्मी हो रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। बेटे उसको और गर्मी और झुंझलाहट और तकलीफ और परेशानी इसलिए हो रही थी कि वो पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग बिफोर लास्ट नाइट, पिछली रात से वो कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पहुंचा, ब्रिंक पर पहुंचा, और and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, अपने पंख में एक पैर को छिपा लेता है और दूसरे वाले पैर के का सहारा लेकर के वो खड़ा रहता है। चट्टान के आगे आता है और एक पैर ऐसे करके, आपने देखा होगा पक्षियों को ऐसे करते हुए, और एक पर खड़ा रहता है। माय डियर्स, अब क्या होता है? ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख उसने बंद किया, एज देन द अदर, फिर एक बंद किया, दोनों बंद कर लिया। He closed his both eyes and pretended to be falling asleep. And he was pretending. Really, he was not sleeping, but he was pretending that he was sleeping. केवल वो बहाना कर रहा था कि वो सो रहा है। Still, they looked no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. They took no notice of dozing, with their heads sunk into their necks and pretending to be falling asleep. Still they look no notice of him. इतना करने के बावजूद भी all his family members were not watching him. इतना करने के बाद भी कोई देख नहीं रहा था, ताकि कुतूहल सबके अंदर हो कि अरे ये तो बाहर आ गया, लग रहा है ये उड़ेगा। Now he is in the mood of flying, but no one was noticing him.
He saw his two brothers. वह दुबके दुबके छिप करके, मतलब छिपी हुई आंख से अपने दोनों भाइयों को देख रहा था। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को भी देख रहा था। लाइंग ऑन द प्लेटो, वह उस पठारी भाग पर पड़े हुए देख रहा था। डोजिंग, वो क्या कर रहे थे? डोज कर रहे थे, ऊँग रहे थे। एज विद देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन को मोड़ करके अपने पंख में ऐसे करके, और वो लोग सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज व्हाइट बैक। अब देखिए अब क्या होता है, दोनों तीनों वहां पर अपना इस तरीके से सो रहे थे। देवर टेकिंग रेस्ट, बट हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके पिताजी क्या कर रहे थे? प्रीनिंग कर रहे थे, मतलब डेकोरेट कर रहे थे, संवार रहे थे, मतलब ड्रेसिंग। प्रीनिंग का मतलब ड्रेसिंग समझ लीजिए। हिज फादर वॉज ड्रेसिंग द फीदर्स, अपने पंखों को, ऑन हिज व्हाइट बैक, अपने सुनहली पीठ पर, मतलब सफेद जो उसकी पीठ थी। Only his mother was looking at him. Wow, what a great statement is here. सब लोग all were busy, but his mother was with him. यही तो बात हमें सदा जीत लेती है। हमारे घर में सब लोग हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन माँ कैसे हो सकती है? माँ तो बस माँ ही होती है। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हर शीशी दस्तक पर तुझको माँ जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से सर्द है तेरा तन, मुझे देके गरम रजाई, माई ओ माई। Well, I made you listen, my dear students, 4 lines related to mother. माँ तो आखिर माँ है, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। इसका मतलब कि कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन माँ की नजर श्री गुल पर थी। और बेटे, कीप इन योर माइंड दैट मदर इज आवर फर्स्ट टीचर। सबसे पहली शिक्षिका हमारी वही होती है, और जब उसकी नजर हमारे ऊपर है तो फिर क्या पूछना। उनकी नजरें करम का असर देखिए, प्यार देता हुआ हर बशर देखिए। देखती तक न थी जिसको कोई नजर, बेकरार देखने हर नजर देखिए। आज उनकी कृपा है, केवल उन्होंने मुझे देखा और आज पूरा संसार मुझे देख रहा है। तो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ शिगुल। कोई मुझे देखे न देखे, मेरी माँ मुझे देख रही है। और क्या वो फील कर रही थी? Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. वो एक छोटे से पत्थर पर खड़ी होकर के खड़ी थी चुपचाप। Her white breast thrust forward, मतलब उसकी जो छाती थी वह गीली थी, आगे से वो गीली थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. अपने पंख में, अपने पैर में एक मछली ली थी, उसको उसने फाड़ा। And then scraped each side of her beak on the rock, और फिर साफ किया अपने बीक को। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wow. इसका मतलब अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान रगड़ करके साफ करती है। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़ करके तेज करना, शिगुल की बात हो रही है। कितना पसंद था उसको इस तरीके से खाना। लेकिन क्या है कि माताजी पिताजी ने मना कर दिया था, तो कुछ ना कुछ तो अब होगा ही। देखिए क्या होता है। गा 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 गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga cola, ga cola, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. Means he was crying ga 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 ga, मतलब गागा गा वो कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करता है अपनी माँ से, और तब जाकर के he cried begging her to bring him some food. वो कहता है, ओ मदर गिव मी समथिंग फॉर इट,
otherwise I will die before you. Coca-Cola, she screamed back derisively. मतलब निंदनीय तरीके से वह चिड़िया भी मतलब बड़े दुखी होकर के वह बोलती है अपने बेटे से, शायद वो कह रही है, but he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और फिर तो 1 या 2 मिनट के पश्चात ही वह खुशी से चीख पड़ती है। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। His mother had picked up a piece of the fish, एक टुकड़ा उठा लिया था, and was flying across to him with it. और वो मछली का टुकड़ा लेकर के माँ उसकी ओर आ रही थी। Mother was coming towards him, उसकी ओर ही आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. मतलब जैसे ही माँ को अपनी ओर आते हुए देखा, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका और पैरों से चट्टान को भजाया, मतलब ऐसे ऐसे किया। जैसे ही वो उड़ा, उसके समीप जाने का प्रयत्न किया उसने, परंतु बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब ठीक उसके सामने ही वो थी उसकी माँ, शी halted, तो उसने क्या किया, शी halted मतलब हर विंग्स मोशनलेस, धीरे 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 वह रोकना शुरू किया अपने पंख को। एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब बच्चे की पहुंच के पास अब हो गया था। वह मछली का टुकड़ा बच्चे तक पहुंच चुका था। और ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित होकर के एक क्षण के लिए प्रतीक्षा किया। Wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. इसका मतलब कि उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के बीच में था। आश्चर्यचकित होकर के वह देखना शुरू किया और कि वो ये सोच रहा था कि यार इतना करीब आकर के, he was thinking कि इतना करीब मेरी माँ आकर के मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। भूख से पागल हो गया था वो, और फिर उसने डुबकी लगाया। और फिर Marius, as far as is enough for today. The remaining part I'll teach you next day, means on the day of Monday. So let me unmute you to talk you something, Marius.